characteristics of business. Okay, I hope you are the clear thing about it. Okay, so now in this video I am going to explain the types of economic activity. Types of economic activity. Okay, types of economic activity. Okay, so in while explaining the term business, at that time only I explained that there are three occupation in economic activity. That is first one business, profession, and third one employment. So there are total three occupations. So you can call the types of economic activity. That is first one business, profession, and employment. Okay, so what is a business? Now all are clear with it. So business is an economic activity. The main motto to do that activity to earn a profit, or you can call a money or livelihood. So business का मतलब क्या है? Business एक economic activity है. उसमें हम the main motto, main intention क्या है? To earn a money and livelihood. But rather than that, what is the difference in business, profession, and employment? So all, what are these? All three are economic activity. Business भी हम profit के लिए करते हैं और money के लिए करते हैं. Profession भी हम money के लिए करते हैं और employment भी हम money के लिए ही करते हैं. But actual difference क्या है? Business, profession, and employment. Okay, business, profession, and employment में actual difference क्या है? So everything we are doing for money purpose, but for all we are not calling as a business. सभी हम मनी के लिए करते हैं, but सभी को हम बिजनेस नहीं कह सकते. Why? Because they are different. They are totally different with each other. But actual difference क्या है? So in today's class we are going to see what is the difference between business, profession, and employment. So everything we are doing for money purpose only. All these are economic activity only. But what is actual difference? So now see, let's start. So business, what is the meaning of business? So business is an economic activity, no doubt within that. But within that, production, procurement, purchase or sales of goods and service should be there. क्या क्या होना चाहिए बिजनेस में? प्रोडक्शन, आपका वस्तु तैयार होना चाहिए. प्रोक्यूरमेंट, वो खरीदना चाहिए. सेल्स और परचेज, खरीदना चाहिए और सेल्स, वो बेचना चाहिए. ये प्रोसेस बिजनेस में होना चाहिए. So then only we can call it as a business. So what is a business? Business is an economic activity in which it should be occupied. Otherwise, it should be related with the production, procurement or purchase or sales of goods and services should be there. So that is the main definition of business. So business में ये सभी चीज होना चाहिए. Production, procurement, purchase or sales of goods and services, and it is to earn a profit. For that we can call the business. Profession means what? So profession it is also an economic activity, but why we are doing it? So in profession what should be there? So in profession mostly we are going to give a service, not a product. Okay, in profession mostly we are going to give a service, but to give that service, professional person should have qualified. He should or she should qualified. Proper skill should be there. Proper knowledge of that field should be there. So that is a very important in profession. But for business, it is not like that. Proper qualification or skills or any knowledge it is not required for to do a business. Anybody can do it easily. Anybody can do it business. But within profession, your proper qualification, which kind of profession you have. Suppose I am a teacher. What is the qualification to me? It should be proper. Doctor, what is the qualification? MBBS, dentist may be there. So according to their profession, they should have proper qualification. Lawyer, so he should with the qualification. Otherwise, you can call chartered accountant, CA. So you should be have that proper qualification. So within a profession, all these are for to earn the money only. So business means what? Your shopkeeper is may be there. So who can be a shopkeeper? There is not proper qualification should be required.
आपका दुकानदार का क्वालिफिकेशन आप पूछते हो क्या? नहीं. He is doing their business. फैक्ट्री, सी अनलिटरेट पर्सन जिसने स्कूल देखा भी नहीं वो भी बिजनेस कर सकते हैं. सो दैट इज द बिजनेस. बट प्रोफेशन दे शुड हैव अ प्रॉपर क्वालिफिकेशन. जैसे डॉक्टर, lawyer, teachers, otherwise, and take a n number of chartered accountants are there. Okay, so n number of professions are there. Okay, so the profession should have proper knowledge of their field and proper qualification according to their field. Okay, so employment means what? So employment means they have a proper qualification also and sometimes not also. If proper qualification is there, they are doing the work for others. If not, then also they are doing the work for others. Actually, what is the definition of employment? Employment means a person who are doing the work for other person. Employees are doing the work for employer. Means मैं कॉलेज के लिए काम कर रही हूँ. means I am an employment of this. I am an employee of this college. It's an employment. I am doing the work for other. Otherwise, at your home, some of your laborers are there, no, they are doing the work for you. Then they are, that is mean the employee. They are employee, you are an employee. Okay. जो इंसान दूसरों के लिए काम करता है उसको एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बोलते हैं. बट जो इंसान दूसरों के लिए काम करता है उस प्रोसेस को एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. ओके. सो व्हाट द मेन डिफरेंस बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट? बिजनेस में क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, परचेज, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोफेशन में प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर क्वालिफिकेशन होना चाहिए. एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? जो इंसान दूसरों के लिए काम करता है उसको हम एम्प्लॉयमेंट करके बोलते हैं. Got the point? So now see what is the first difference. Mode of establishment. Mode of establishment means how it generate. Otherwise how we can create the things. उसका origin क्या है? एक ऐसा बिजनेस कैसा स्टार्ट हो सकता है, प्रोफेशन कैसा स्टार्ट हो सकता है और एम्प्लॉयमेंट कैसे स्टार्ट हो सकता है. What is the initial point for business, profession and employment? So how the business is going to be start? So entrepreneur's decision and formalities. Business हम कैसे start कर सकते हैं? Entrepreneur's decision. Entrepreneur means what? Who want to do a business. I want to do a business, then I am an entrepreneur, or you can call businessman. Entrepreneur means businessman. Who want to start a business, for that we can call the entrepreneur. So business कैसे start कर सकते हैं? Entrepreneur का decision पे डिपेंड है. बिजनेस कब स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है. मतलब मैं मेरा बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब टोटली द डिसीजन हाउ टू स्टार्ट माय बिजनेस इज डिपेंड अपॉन मी. गॉट द पॉइंट? आई वांट टू स्टार्ट माय बिजनेस मींस व्हाट इज द टोटल डिसीजन ऑफ माय बिजनेस, इट इज आई एम गोइंग टू टेक. मुझे कब स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, डिपेंड अपॉन मी. दैट इज मीन एंटरप्रेन्योर डिसीजन. एंड फॉर्मेलिटी. सो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज रहते हैं. आपको फॉर्मेशन ऑफ कंपनी ये चैप्टर है, उस चैप्टर में आएगा. कुछ फॉर्मेलिटीज रहते हैं. रजिस्टर करना पड़ेगा, ऑथराइज प्रॉपर नेम देना पड़ेगा. व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज आर देयर? नो, इफ यू कंप्लीट दैट फॉर्मेलिटीज देन यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस. एक तो आपका इट इज योर चॉइस, इट इज योर डिसीजन. इफ यू वांट टू डू योर बिजनेस, इट इज योर चॉइस. व्हेन यू वांट टू स्टार्ट यू कैन स्टार्ट, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज देन ओनली यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस. ओके. सो प्रोफेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? ओके, हाउ वी कैन स्टार्ट आवर प्रोफेशन? So when members of professional body and proper certificate. मतलब एक आप मेंबर होना चाहिए प्रोफेशनल बॉडी का, मतलब आप प्रॉपर एजुकेशन देना चाहिए उस प्रोफेशन में, एंड यू हैव सर्टिफिकेट अबाउट दैट क्वालिफिकेशन. ओके. सो आई एम अ टीचर मीन्स व्हाट? आई शुड हैव अ मेंबरशिप बॉडी मीन्स आई शुड टेक अ प्रॉपर क्वालिफिकेशन टू डू दिस थिंग्स, एंड आई शुड हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ माय क्वालिफिकेशन. डॉक्टर है तो वो डॉक्टर को प्रॉपर उसका क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका ट्रेनिंग होना चाहिए. एवरीथिंग शुड बी कंप्लीटेड. कोई भी नहीं स्टार्ट कर सकता. ओके. सो प्रॉपर क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड. इफ यू कंप्लीट योर क्वालिफिकेशन, इफ यू कंप्लीट योर एजुकेशन, देन ओनली यू कैन स्टार्ट योर प्रोफेशन. ओके. लॉयर का बोलते हैं जब इफ यू कंप्लीट योर डिग्री इन LLB, देन ओनली यू कैन बिकम अ लॉयर. बिफोर दैट यू आर नॉट एबल टू डू द प्रोफेशनल. एम्प्लॉयमेंट. सो एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट कर सकते हैं? एनी प्रॉपर क्वालिफिकेशन एंड व्हेन द एम्प्लॉय इज गिवन अ अपॉइंटमेंट लेटर टू यू. एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? आप दूसरों के लिए काम
करते हो तो दूसरे लोग आपको काम के लिए रखना चाहिए, वो प्रॉपर आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना चाहिए, हाँ बाबा कल से तो काम पे आ, ऐसा प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर दिया तो ही हम एम्प्लॉयमेंट में काम कर सकते हैं, अदरवाइज बिकॉज आई एम एम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हाट, हमें नहीं यहाँ पे इंटरव्यू देके गई, सो ये लोग मुझे प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद में ही मैं काम कर सकती हूँ, अदरवाइज नो, दैट इज द थिंग. So what is the second difference? Nature of work. So nature of work within the business, that is the provision of goods and services. So within a business, just I told within the definition, business में proper आपका production, procurement, purchase, sales of goods should be there. That is the provision of goods and service should be there. Next, profession में rendering a personalized expert services. So just at initial point we told here products और सर्विस का हम परचेज कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, सो एवरीथिंग वी कैन डू इन रिलेटेड विद द गुड्स एंड सर्विस इन बिजनेस विदिन अ प्रोफेशन रेंडरिंग पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज. मींस आप सर्विस पर्सनली सर्विस दे सकते हो, मींस आई एम टीचर मींस आप पर्सनली गिविंग यूर सर्विस, बट बिजनेस में आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आप 10 पीपल को रख सकते हैं, उसके द्वारा आप काम कर सकते हो, बट प्रोफेशन में आप खुद काम करना चाहिए, आप खुद पर्सनलाइज, आप खुद आप सेवा देना चाहिए, वहाँ पे मीन्स पर्सनलाइज्ड सर्विस यू हैव टू गिव इन प्रोफेशन. और द पॉइंट इन एम्प्लॉयमेंट आल्सो परफॉर्मिंग वर्क एज पर द कॉन्ट्रैक्टेड रूल्स. इन एम्प्लॉयमेंट आल्सो यू शुड गिव द पर्सनलाइज्ड सर्विस एज पर कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज योर वर्क और रूल्स और रेगुलेशन, जो आपके मालिक ने आपको कहा है वैसे आप वहाँ पे काम करना चाहिए. Okay, so that is for employment. So what should be the qualification for business? So business करने के लिए क्या qualification चाहिए, आपका education की क्या चाहिए? So business करने के लिए आपका qualification नहीं, कुछ भी नहीं है, आप unliterate हो तो भी आप business कर सकते हो, uneducated हो तो भी आप business कर सकते हो, और minimum qualification हो तो भी आप business कर सकते हो. There is no any problem when you are going for a business. So business के लिए proper qualification mention नहीं की है, but for profession you should be a proper qualification expertise. Which kind of profession you have, that kind of qualification you should be have. डॉक्टर को LLB complete, डॉक्टर को MBBS complete होना ही चाहिए, लॉयर को LLB complete होना ही चाहिए. They should have proper training in their field. चार्टर दैट इज CA को चार्टर अकाउंटेंट का कुछ भी एग्जाम से वो देनी ही चाहिए. That is should be proper qualification it is required in profession. And qualification for employment, qualification as per the prescribed their work. So employment के लिए आप कौन सा which kind work you have, according to that proper qualification should be there. अभी employment पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, a person who are working in bank, a person who are working in a bank, for that person is employed. So उसको क्या qualification चाहिए? They should be graduated in commerce. So according to that, their qualification should be there. Okay. So person who are working in industry. So वहाँ पे क्या qualification चाहिए? Suppose वो engineer चाहिए. So according to that, engineer qualification should be there. So according to the prescribed, which kind of work you are having there, you are doing for others, no, that kind of qualification should be there. Okay. So next one, reward of return. आप एक प्रोफेशन और बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, उसका रिटर्न में क्या मिलता है? इन टर्म्स ऑफ दैट व्हाट यू गॉट, बिजनेस किया तो आपका सभी में मनी ही मिलता है, नो डाउट. इन ऑल बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी यू आर गोइंग टू गेट, यू अदरवाइज यू आर गोइंग टू अर्न मनी ओनली, नो डाउट. बट उस मनी को क्या कहते हैं? सो बिजनेस में मनी अर्न किया तो उसको प्रॉफिट कहते हैं. इन प्रोफेशन इफ यू अर्न मनी, उसको प्रोफेशनल फीस कहते हैं. फीस, प्रोफेशनल फीस, उसको प्रॉफिट नहीं कहते. यू आर गोइंग टू गिव अ फीस टू योर डॉक्टर, ओके. और प्रोडक्ट परचेज किया तो आप पैसा देते हो, उसको क्या कहते हैं? रेट. डॉक्टर का रेट है करके नहीं बोलते, डॉक्टर का फीस कितना है करके बोलते हो. सो प्रोफेशनल में जो अर्न होता है उसको प्रोफेशनल फीस बोलते हैं. प्रॉफिट, बिजनेस में जो अर्न होता है मनी, उसको प्रॉफिट कहते हैं. और एम्प्लॉयमेंट जो मनी अर्न करता है उसको सैलरी हो वेजेस करके बुलाते हैं. वेजेस ये डेली बेसिस पे देता है. आज दिन भर काम किया तो इवनिंग को आप आपका पैसा लेके जा सकते हो.
salary per month. You are going to get the salary in employment. So we are employment. We are doing a work for other. So for that we have a proper qualification. So we are doing a work for other. In terms of that, we are going to get a salary. Okay. So I hope these 4 points are clear for you. So next 4 points. So capital investment. Capital यानी कि पैसा. Capital, money, everything that is a पैसा. Okay. So capital investment. So business में कैसा होना चाहिए? As per size and nature. So आपका business का size कितना है? कौन सा टाइप का business है? So according to that आप उसमें पैसा invest करना चाहिए. According to that you have to invest money in your business. Okay. So as per your business size and nature, मतलब कितना small business है, medium business है और big business है. So according small है तो small invest करना पड़ेगा, medium है तो medium, large है तो large पैसा invest करना पड़ेगा. So according to your size of big business you have to invest the money there. But mostly for business you have to invest the more money or capital investment is higher for a business. Profession में कितना क्या पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? So it is a limited capital. Business में जितना मनी लगता है इन्वेस्ट करने के लिए उतना मनी तो प्रोफेशन में नहीं लगता. अब लॉयर है, वकील है, उसको क्या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? उसके बिजनेस के लिए कुछ भी नहीं. क्या लगता है लॉयर को? डायरेक्टली खाली एक ऑफिस, टेबल, चेयर, लैपटॉप, दैट मच थिंग्स आर इनफ. सो इट इज अ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट. टीचर्स इफ दे हैव देयर ओन ट्यूशंस, तो क्या लगता है? बोर्ड, चॉकपीस, बेंचेस, दैट मच ऑफ इन्वेस्टमेंट. बट बिजनेस को उससे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है. प्रोफेशन में लिमिटेड पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है. एम्प्लॉयमेंट में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता क्योंकि हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं. मतलब दूसरा आपको सब फैसिलिटी देता है, सिर्फ आपको फैसिलिटी का इस्तेमाल करके आपका काम करना चाहिए. दैट इज द थिंग. सो एम्प्लॉयमेंट में कुछ भी मनी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं लगता. देयर इज नो नीड टू इन्वेस्ट एनीथिंग. आपका मनी कुछ भी नहीं लगता. बिजनेस में तो ज़्यादा लगता है, प्रोफेशन में तो लिमिटेड, एम्प्लॉयमेंट में तो कुछ भी मनी नहीं लगता इन्वेस्ट करने के लिए. नेक्स्ट रिस्क. सो बिजनेस में क्या है? इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ओनली आई टोल्ड द थिंग्स. बिजनेस हैव लॉट ऑफ रिस्क और इट इज अनसर्टेन. सो बिजनेस में आप पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो मतलब रिस्क इज ऑल्सो हाई. ओके. सो रिस्क एंड अनसर्टेन. ऑलवेज यू आर गोइंग टू गेट अ प्रॉफिट, देयर इज नो चांस. समटाइम्स यू कैन कॉज फॉर लॉस ऑल्सो. बिजनेस कर रहे हो, आपको उसका नफा ही मिलता जा रहा है ऐसा नहीं, आपको उसका प्रॉफिट ही मिलता जा रहा है ऐसा नहीं. समटाइम्स यू आर गोइंग टू फेस द लॉसेस ऑल्सो. सो हाउ? सो आई टोल्ड यू द डिफरेंट फैक्टर्स आर देयर. मतलब आपने एम्प्लॉइज ने प्रॉपर वर्क नहीं किया तो आपका लॉस आएगा. देयर आर डिफरेंट इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट्स आर देयर, गवर्नमेंट इन्वायरमेंट्स आर देयर, political interference are there. Okay, different environments are there. If these things are changes, you are going to cause the. Take example. Due to coronavirus, everything it is lockdown. Is it right? So how many losses are there? Got the point? So it is the outside factor. Business का मतलब क्या नहीं? हम काम करने के लिए जा सकते हैं, but it is a safety? No. Okay. So that's why everything it is closed, and if due to the industry is closed, we are going to face a problem of losses in our company. Okay. So the profession में some risk is fixed there. Okay. And fixed fees. यहाँ पे आंसर दिया होता है आपने fixed fees इस रहते हैं, इसलिए पैसे का तो लॉस कम हो सकता है. क्यों? सम रिस्क आ गया क्योंकि किसी ने फीस नहीं दिया तो उतना ही लॉस होगा. टोटली लॉस नहीं हो सकता है वहाँ इन प्रोफेशन. So suppose that I am a teacher, I am taking a tuition and 10 students are there and 8 students are paid a fees and 2 students are not paid a fee. So that much only I can face a losses, not more than that. Okay. So some risks are there and within the employment no risk and little fixed payment. Because employment में रिस्क तो कुछ भी नहीं रहता. आप दूसरों के लिए काम करते हो, जो भी प्रॉब्लम आएगा आपका मालिक देखेगा, आपका मालिक देखेगा. वहाँ पे आपको कुछ भी फेस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यू आर टेकिंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ पेमेंट. बिजनेस में ज़्यादा अमाउंट ऑफ पेमेंट, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, रिटर्न्स भी ज़्यादा है. सो रिस्क इज मोर. प्रोफेशन में लिटिल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज लिटिल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लिटिल अमाउंट ऑफ रिस्क. एंड एम्प्लॉयमेंट में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, सो आपको कुछ भी रिस्क फेस नहीं करना पड़ता. दैट इज द थिंग. नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. ट्रांसफर ऑफ
मैं बोर हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डू अ बिजनेस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू माई बिजनेस. सो व्हाट आई विल डू, माई बिजनेस आई एम गोइंग टू गिव टू अदर पर्सन. Got the point? Transfer of interest means what? You can take a just example. Suppose we told you a homework. Okay. So doing a homework, it is your duty. And what you are doing, your homework you are given to your sister. Okay, to do that. So that is a transfer of interest. We told you, you are telling to your sister. So that is okay there, no doubt. Okay, but business में transfer of interest हो सकता है क्या? Yes, possible with some formality. Suppose I am not interested to continue my business, I can transfer my interest to other person. मतलब मैं मेरा कंपनी दूसरा पर्सन को चलाने के लिए दे सकती हूँ. My business, my own business, I can give to other person to do that. Okay, मेरा जो बिजनेस है मैं दूसरा पर्सन को दे सकती हूँ चलाने के लिए. So जो भी प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, वो सभी को पर्सन देखेगा, मेरा कुछ भी नाता नहीं है. But possible of interest, transfer of interest, it is possible in business. But transfer of interest, it is not possible in profession. Why? आज डॉक्टर है, डॉक्टर ने बोला कल नर्स को, कल से तू ही डॉक्टर हो, ऐसा चलेगा क्या? नो. सो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. लॉयर ने बोला क्लाइंट को, कल से तू ही केस लड़ ले, ऐसा चलेगा क्या? नो. सो प्रोफेशन में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता. मैं टीचर हूँ, मेरा सब्जेक्ट मैंने दूसरा टीचर को दिया, हाँ तू ही सिखा कर, तो ऐसा चलेगा क्या? नो. सो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इट इज नॉट पॉसिबल इन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आल्सो. सो मेरा काम इन प्रोफेशन, मेरा काम मैं खुद ही करना चाहिए, उसको दूसरों को दे नहीं सकती. एम्प्लॉयमेंट में व्हाट इज माय वर्क, आई हैव टू डू, आई एम नॉट एबल टू गिव टू अदर्स. सो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इट इज नॉट पॉसिबल इन एम्प्लॉयमेंट आल्सो, इन प्रोफेशन आल्सो. बिजनेस में मेरा बिजनेस दूसरों को चलाने के लिए दे सकती हूँ. Next, code of conduct. So code of conduct means what? Mostly it is called Achar Sanhita. Okay, Achar Sanhita. So code of conduct it is not. मतलब कुछ भी rules, restricted rules are not there in business. Because business it is yourself. आपका खुद का business है, मनमानी जो चाहे वो कर सकते हो. But within a specified limit. आपको कब आना है, कब आपका business open करना है, कितने दिन छुट्टी लेना है, क्या करना है, वो आप सभी आपके ऊपर डिपेंड है. बिकॉज इट इज योर बिजनेस, सो नो वन विल बी इंटरफेयर विद दैट. बट प्रोफेशन में प्रोफेशनल कोड एज पर फॉलो. प्रोफेशन में व्हाट आर द प्रिस्क्राइब, आपका जो मेंबरशिप बॉडी रहता है उसका एज पर रूल्स आपको फॉलो करना पड़ता है. सो दैट इज द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर प्रोफेशन. एंड एम्प्लॉयमेंट क्या फॉलो करना चाहिए, वो जिस कंपनी के लिए वो एम्प्लॉयमेंट काम कर रहा है उसका जो रूल्स रेगुलेशन है वो एम्प्लॉयमेंट में फॉलो होना चाहिए. बिकॉज आप मनमानी कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ पे. बिजनेस में आपको जब चाहे ओपन करो, जब चाहे क्लोज करो, जितना चाहिए रॉ मटेरियल मंगा लो, जितना चाहे भेज दो, इट इज डिपेंड अपॉन यू. बट प्रोफेशन में प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी देयर, इट इज रिस्ट्रिक्टेड एंड विदिन द एम्प्लॉयमेंट आल्सो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर. सो व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय योर कंपनी, आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो उसमें जो रूल्स रेगुलेशन है अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू फॉलो द थिंग्स. So last one example. So business में कुछ भी हो सकता है, शॉप है, फैक्ट्री है, घर में आप कर रहे हो, पार्लर चला रहे हो, और एवरीथिंग इट इज अ बिजनेस. ओके. सो प्रोफेशन में डॉक्टर है, टीचर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, सो एवरीथिंग कम्स अंडर द प्रोफेशन. एंड एम्प्लॉयमेंट में जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, अभी डॉक्टर के पास जो लोग काम कर रहे हैं दीज आर द एम्प्लॉयमेंट. लॉयर के पास जो काम कर रहे हैं दीज आर द एम्प्लॉयमेंट. बैंक में जो लोग काम कर रहे हैं दीज आर द एम्प्लॉयमेंट. जहाँ जहाँ जो लोग दूसरों के लिए काम कर रहे हैं वो सभी एम्प्लॉयमेंट में आ सकते हैं. सो फॉर मिड टर्म्स दिस क्वेश्चन में बी गोइंग टू आस्क फॉर 8 मार्क्स एंड फॉर your external example they will be asked for 4 marks. So you have to write any 4 difference between business, profession and employment. So according to exam point of view and general knowledge point of view also this thing is very important. I hope you got the clear things about it. So